हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट ब्लैंक। और आज पॉइंट ब्लैंक पे अगेन बैक टू द पॉइंट विद अभिजीत। हाय अभिजीत। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? नमस्कार, बिल्कुल ठीक, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे जो हमारे सीडीएस साहब हैं। इन्होंने एक बहुत ही प्रीमियम सिक्योरिटी डायलॉग होता है सिंगापुर में, वहाँ पे इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या औचित्य था, क्या औचित्य नहीं था, या फिर वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं कहना चाह रहे थे। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी एसेस करने की सिचुएशन करेंगे कि वाई द एंटायर इंटरनेशनल मीडिया इज रनिंग बिहाइंड इंडिया ने क्या खोया, क्या नहीं खोया। हाउ एवर they are clearly by design missing the amount of destruction that has been inflicted on Pakistani bases and military infrastructure. Yes, good start. So this is my take. Men and material don't matter in a war, because when you go to war, you are bound to lose men, you are bound to lose your material. Your objective of the war is very important, and the objective of the war is to strike deep in the enemy. Yes. Right. Make sure that their defenses are down, strike at will, and make sure that they are deterred from taking some action or coming heavily upon you and doing losses on us. Control the escalation ladder Yes. also, Control जो the कि हमने escalation ladder. बहुत ही केयरफुली इस बार कंट्रोल किया। So मेन मटेरियल जो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट जहाज गिर गया, एक गिर गए, दो गिर गए, एंड ही हैज बीन वेरी क्लियर आल्सो व्हेन ही वाज आस्क्ड कि पाकिस्तान इज क्लेमिंग दे हैव शॉट डाउन 6 एंड ही सेड एब्सोल्यूट नॉनसेंस. That is true. So maybe you must have lost one or two, and we know that there was one which went down in Srinagar. We know about it, what happened to it. It was a technical fault which brought down that particular airplane. I will not give the make of the That plane, has something to do with the operational design of yeah, the. it has got to do with operations. We knew from day one that came down. So maybe we lost one or two, but that's not the point. The point is we achieved our strategic success, our strategic objective. And I think that is important to talk about, right? One. Number two, the CDS has gone ahead, and why he said that, I think, is because it's upholding the tradition of the Indian army to present facts to the world after every conflict which has happened, anywhere. We don't hide our losses. We don't hide our men behind conflict by saying no, we have not lost anyone, because in India it doesn't work that way. We are our armed forces are accountable to people, to government, to everybody, to the nation, irrespective of the Pakistanis, unlike of the Pakistanis. Now, Pakistanis in Kargil actually left the dead bodies behind. The dogs were feeding on them, and there is footage of that. उनका अंतिम संस्कार शायद भारतीय सेना के द्वारा किया गया था. We did it, and then we retrieved those bodies and we dug the graves for them and we put them in the graves. So हमने उनको किया था, but the Pakistanis proper military tradition के साथ proper. We gave them a proper burial. Yes. And I remember watching that footage where literally dogs were feeding on the Pakistani troops who had died on those hills. Nobody talks about it. Nobody questions Pakistan on why you leave your men behind. Same thing happens in their own insurgency things as well. Then they get killed, TTP, beheads them, but they never ever give due credit to the men who have fallen in Pakistan. They always hide it. They don't give them a state burial. They refuse to say that they have lost men. So that is the history of Pakistan. And true to its history, even this time also, once we bombed them, they lost men. Not only on LOC, they lost men on air bases. The only loss they could not hide was of a squadron leader, right? But जो उसके साथ बाकी 25 लोग मरे, उनके बारे में तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है. उसके बारे में कोई जिक्र नहीं. ना इंटरनेशनल मीडिया जिक्र कर रही है, ना पाकिस्तान की अपनी स्टेट मीडिया जिक्र कर रही है. इनफैक्ट पाकिस्तान के कुछ ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उन्होंने भी एक या दो लोगों को छोड़कर के उस चीज़ पे कहने से बचने की कोशिश की है. या तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, या बाय डिज़ाइन उन्होंने इस चीज़ पे बात करने की कोशिश नहीं की. नहीं, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंची? इन्फॉर्मेशन सारी सोशल मीडिया पे. हमारे पास लिस्ट है कितने लोग मरे, ठीक है, क्योंकि जिसका जो मरता है वो फेसबुक पे तो लिखता है उसको कि मर गए, ठीक है, तो वहां से तो पता चलता है कि भाई ये मर गया. वो भी लिखता है कि कैसे मर गया. तो इंडिविजुअल लेवल पे तो पीपल ग्रीव देम, बट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे द पाकिस्तानीज डोंट ओन देम, don't grieve them, don't give them a state funeral. आप इसको देखिए कि अगेन
जहनियत ही इस मुल्क की और जो ये सेना के सिपह सलार हैं इनकी इस तरीके की है। आपकी हिस्ट्री में सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है 1971 में, और उसके अगले दिन लाहौर में डॉन पब्लिश करता है कि जिहाद विल कंटिन्यू। हाँ, तो वही है ना कि जहाद तो मतलब continue है। 93,000 लोगों ने अनकंडीशनल सरेंडर किया, और अब आप अपने मुल्क से, अपने कौम से झूठ बोल रहे हैं कि जो जिहाद है ये चालू रहेगा। किस तरीके का जिहाद चालू रहेगा? तो जहाद तो चल रहा है ना, वो तो उन्होंने कंटिन्यू रखा था, वो इसीलिए उन्होंने कहा जहाद कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि दैट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट की इस बारी हम हार गए, अब हम इसको कंटिन्यू हाँ, रखेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है बट कि वो उनमें, किस हिसाब से हाँ, अपनी हार को जिहाद के पीछे छुपाते हैं। क्योंकि उनमें ये दम नहीं है बोलने का, दे डोंट हैव द गट्स टू से दैट वी हैव लॉस्ट। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अपनी हार को छुपाने के लिए वो कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हैं और वो जहाद के पीछे छुप जाते ये तो पूरा कौम, पूरा मुल्क 1947 से झूठ बोलता आ रहा है ना। हैं। तो ये तो अपने आप से जो उनके सिलेबस है उसमें वो झूठ बोल रहे हैं, अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, मुझको लगता है कि कुछ दिनों बाद अगर हमें ये सुनने को मिले कि ये आसमानी किताब एक ही नहीं है, दूसरी भी आसमानी किताब है, वो है पाकिस्तान टेक्स्ट बुक, तो हमें इसमें कोई अचरज की बात नहीं नजर आती है उनके मुझे। लिए तो वही है, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इंडिया बाय द इंटरनेशनल मीडिया। सो ब्लूमबर्ग आस्किंग अ क्वेश्चन टू सीडीएस, ठीक है, एवरीबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू सीडीएस, देयर इज कमेंट्री ऑन कि नहीं जी क्या हो रहा है, कितने गिर गए, क्या हुआ, इंडिया में बैठे हुए जर्नलिस्ट ने हमारा जहाज गिर गया। Why is the same scrutiny not happening when it comes to Pakistan? देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जो इंटरनेशनल मीडिया है, और जब मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ तो जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो इनका कोलैबोरेशंस हैं, और टीयर 2 के जो लीडर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो किसी सिक्योरिटी डायलॉग या सिक्योरिटी इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये अभी तक पचा नहीं पाए हैं कि इंडिया ने डीप स्ट्राइक की इन पाकिस्तान। डेजिग्नेटेड टारगेट्स थे, हार्ड टारगेट्स थे, सक्सेसफुल एलिमिनेशन किया गया, और सिर्फ इसके बाद फिर इंडिया ने एस्केलेशन लेडर कंट्रोल किया। बता दिया गया इंडिया से कि हमने आपके साथ, हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है, हमने जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको टारगेट किया है, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो हमारे साइड से ऑपरेशन ख़त्म है। लेकिन उनके ईगो पे बात आ गई, और जाहिर सी बात है वो अपने आप को गार्जियन ऑफ द सी, एयर, लैंड, सारी चीज़ें डिपिक्ट करते हैं, और अगर हम ना हों तो एक दिन में आपको ये जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू हैं, ये इन्वेड कर लेंगे और आपको अपना ग़ुलाम बना लेंगे। इन्हें तो कुछ करना ही था। दूसरी चीज़, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, टेक्निकली जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आर्म फोर्सेस का ही एक एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं है कि दोनों पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। सबको एक दूसरे के बारे में पता है। फंडिंग कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट दीज द एजेंसी भी करती हैं, अपार्ट फ्रॉम द डोनेशन विच दे गेट फ्रॉम पब्लिक। तो इनके ऊपर प्रेशर पब्लिक का भी था, जो टेररिस्ट इकोसिस्टम के लोग हैं इनका भी प्रेशर था, और इन्हें कहीं ना कहीं अपनी नाक बचानी थी। अच्छा, इस बार इनके ऊपर प्रेशर इंटेलेक्चुअल्स का भी था। मैं बहुत ही ज़हीन उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ें बोलते रहते हो, और इस बार तो प्रॉपर प्रूफ था। हमसे पहले पाकिस्तानियों ने प्रूफ दिखा दिया कि ये देखिए लाइव मिसाइल गिर रही हमारे थी, साथ क्या हो रहा है। हाँ क्या हो रहा है। तो इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, सेम वही चीज़। उसके बाद हमने फिर से इनको बताया कि हम अभी भी जो तुम्हारे एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करके हम इसे एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि यहाँ पे इंडिया की सुपीरियरिटी है, उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हुई, बीते 40-50 साल में इस तरीके का टारगेटेड अटैक यूजिंग सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और मे बी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता है कि दो न्यूक्लियर इनेबल्ड कंट्रीज़ के बीच में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इसकी वजह से जो भी इंटरनेशनल मीडिया है, जो वाइट मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा सदमे में है कि इंडिया आखिर कर कैसे सकता है, वो भी तब जब हम पाकिस्तान को अभी तक बचाते हुए आए हैं। देखिए, पाकिस्तान तब तक सर्वाइव करेगा जब तक जो उसके इंटरनेशनल बैकर्स हैं इसे सपोर्ट करते रहेंगे, और इसके इंटरनेशनल बैकर्स हमेशा इसे सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर और मनी हम सिर्फ इसलिए अलग कर देते हैं क्योंकि पाकिस्तान नाम की एक चीज़ हमारे बगल में है, जिसका एक
जिसे ना शांति के साथ रहना है न रहने देना है। तो इंटरनेशनल मीडिया ये चीज़ एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही है। उनको ये लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान का एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उन्हीं की मदद से बना है ना। बट इंडिया आज की डेट में अगर हम देखें, यू नो, दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अमेरिकन्स टू से दैट द चाइनीज इक्विपमेंट इज वेरी बैड। ठीक है, क्योंकि 83% ऑफ पाकिस्तान का जो डिफेंस Yes. है, यू नो, डिफेंस प्रिक्योरमेंट है, दैट इज हैपनिंग फ्रॉम Yes. चाइना. Despite Chinese being dud, they could not, you know, take this loss, and they will not talk about it, is because I think they also are somewhere insecure. कि देखो, अगर इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, अगर इंडिया ने मिसाइल्स अमेरिकन यूज किए होते, राइट, तो आई थिंक द अमेरिकन्स वुड हैव गॉन वेरी हैप्पी कि देखो देखो पाकिस्तान में क्या हुआ, बिकॉज इंडिया हैज यूज्ड इट्स ओन इंडिजिनियस, you know, missiles and its rockets and its own system, its defense system. I think that is also something which is making the Americans insecure. Exactly. यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जितने भी वाइट इंटरनेशनल मीडिया हैं, वाइट रिपोर्टर्स हैं, वाइट जर्नलिस्ट हैं, ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया कैसे इस तरीके की फीट अचीव कर सकती है। और मेरा तब भी यही मानना था, अब भी यही मानना है कि कोई ना कोई अमेरिका का डर्टी सीक्रेट वाज अबाउट टू सरफेस। F-16 की जो एंटायर फ्लीट है वो चाइना की दी हुई तो नहीं है। नहीं, वो तो सारी अमेरिकन। जो उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या चाइना आज का तो बना हुआ नहीं है, चाइना का बनाया हुआ नहीं, कहीं ना कहीं अमेरिका के ही पैसे उसमें लगे हुए हैं, अमेरिकन एक्सपर्टीज लगी हुई है, अमेरिका के कई सारे सिस्टम इंस्टॉलेशंस उसमें लगे होंगे। एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग की, देखिए इंडिया ने अपनी इंडिजीनियस कैपेबिलिटी डेवलप की, सुपीरियर कैपेबिलिटी है एंटायर नेबरहुड में, और इस तरीके के टारगेट्स इन्होंने स्ट्राइक किए, सक्सेसफुल स्ट्राइक किए, कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड बंकर्स भी स्ट्राइक किए। दे जस्ट कैनॉट डाइजेस्ट इट कि इंडिया के पास इस तरीके की मिलिट्री सुपीरियोरिटी आ भी कैसे सकती है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनके पास बची एक चीज, पाकिस्तान का क्लेम कि हमने 6 जेट्स गिराए इंडिया के। सबसे पहली चीज, इंडिया में इंफॉर्मेशन आप सप्रेस नहीं कर सकते हो। जो जेट्स हैं कोई मोटरसाइकिल या बच्चों की साइकिल नहीं है कि झाड़ी के बीच में जाकर के छुप गई, या ऊपर से कुछ गिरेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इंडिया में इस तरीके की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी सप्रेस नहीं हो सकती है। जो 1 या जो 2 केस हुए हैं उनके बारे में हमेशा बात हुई है। हमारे DGAO ने बहुत साफ कहा था कि कॉम्बैट सिनेरियो में लॉसेस होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो सेफ थे, उनका कोई लॉस नहीं हुआ। मटेरियल्स का पर्पस ही यही होता है कि आप इसे यूज़ करिए, आज नहीं तो कल ये ख़राब होंगे, उसके बाद हम नए मटेरियल्स जो है एक्वायर करेंगे, वरना फिर एक्वायरमेंट की ज़रूरत ही क्या थी। जो हमारे पास 50s-60s में सामान था उसी को हम यूज़ करते रहते हैं। उसका बेसिक फंडा यही है कि आप एक चीज़ ले रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, कितना आपके लिए बेनिफिट है, यूज़फुल है, कितना एडवांटेज है, कितना डिसएडवांटेज नहीं है, ये सारी चीज़ें आप एसेस करते हो। उसके बाद आप नई चीज़ एक्वायर करते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो। एग्जैक्टली। और बहुत पते की बात की कि जो पहले दिन जो भी चीज़ें हुई उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई किया गया। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान के कितने सारे अकाउंट से जो कह रहे थे अराउंड 120 फाइटर जेट्स वर इन एयर, इधर उधर मिला करके। we struck them deep 300-400 किलोमीटर। एग्जैक्टली। और इसके बावजूद भी सक्सेसफुल स्ट्राइक हुई, एक भी मिसाइल ऐसी जगह पे नहीं लैंड हुई जो हमारा डेजिग्नेटेड टारगेट नहीं था, एक्सेप्ट किराना हिल्स। उसमें तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया। तो एक्सेप्ट किराना हिल्स, एक ही मिसाइल जो थी, तो 99% हमारी एक्यूरेसी। तो ये एक तरीके से जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, इनकी, आई विल नॉट यूज द टर्म इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बट दे आर जेलस कि इंडिया यहाँ पे पहुँच भी कैसे गया। एक मुल्क है जिसका हमने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और वो मुंह की खा गया, पचा ही नहीं सकते हैं ये लोग ये चीज़। बट इसमें एक और चीज़ है, are we lacking behind in carrying our message to the world? Why I say that is, I'll tell you. You go to any major publication in the world, ठीक है, you will find Pakistani journalists embedded. अच्छा, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये नहीं है जो इंडिपेंडेंटली खुद पढ़ लिख के खुद ही अपनी मेरिट पे पहुंचे। They're all institutionalized, trained by ISI, groomed by ISI, nurtured by ISI, funded by ISI. Their education is funded by them as well. ठीक है, तो ये they are basically, they are, you can say, prepared ununiformed soldiers of
ISI which go and Yes. sit in these places, and they spread their narrative and their tentacles Soldiers of narrative. information warfare. Yes, soldiers of information warfare. वो चाहे फिर आज उनके soldiers रोग हैं, मगर वो कहते तो हैं कि हम 5th generation warfare लड़ रहे थे इंडिया के साथ, 5th generation hybrid warfare हम है, लड़ रहे थे. उनको We बड़ा are ही the- ऑब्सेशन है इस तरीके की हाँ. टर्मिनोलॉजी से. So and they claim it on their own YouTube as also कि we were a part of it, and Yes. they are, some of them are still a part of it, Yes. despite having their problems with the current regime. Why is it that we are lagging behind with the same kind of approach when it comes to India's narrative building in the Western world or to the outer world? मल्टीपल फैक्टर्स हैं. एक तो फॉर एग्जांपल एक डेडिकेटेड यूनिट है ISPR. हमारे यहाँ एज सच कोई डेडिकेटेड यूनिट नहीं है. अब इसका क्या रीज़न है, क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है? ज़रूरत बिल्कुल है, लेकिन ये ज़रूरत अभी तक एक्नॉलेज नहीं की गई है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे. प्राइवेट स्पेस में माना गया है और कहीं ना कहीं से वी गेट द थिंग्स डन, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि हमें भी इस तरीके की इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, जहाँ पे हम इस तरीके के लोगों को रिक्रूट करेंगे जिनका सोल पर्पस ये होगा, जो हमारा अपना नैरेटिव है उसको फ्लोट करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल मीडिया. दूसरी चीज़ ये है कि समहाउ अगर आप देखें कि क्या हमने न्यूयॉर्क टाइम्स का, वॉशिंगटन पोस्ट का, पॉलिटिको का या फिर वॉशिंगटन एग्जामिनर का, हम लोगों ने क्या इनका कुछ बिगाड़ा, या फाइनेंशियल टाइम्स का, हमने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है. इनफैक्ट जब इनके जर्नलिस्ट आते हैं तो हम रेड कारपेट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन शायद उसको ये वीकनेस समझते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर इनग्रेन्ड हेट्रेड है अगेंस्ट इंडिया. पाकिस्तान क्लाइंट स्टेट रहा है उनका, तो पाकिस्तान को एक ये एडवांटेज मिल पाता है कि आपने इंस्टीट्यूशनली सोल्जर्स प्रिपेयर किए हैं और वहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए स्कोप है. ना हमने इस तरीके के सोल्जर्स तैयार किए हैं, ना हमारे लिए स्कोप है, बिकॉज आइडियोलॉजिकल अपोजिशंस ऑफ दीज मीडिया हाउसेस अगेंस्ट इंडिया. तीसरी चीज़ ये है, जो इक्के दुक्के लोग भी हैं, आपको पता है हम लोगों ने क्या कहते हैं, ब्राउन सोल्जर्स. तो वो तो they are extension of उनको, 0.5 हाँ, उनको 0.5 ये lakh. उनको इंडिया को विलीफाई करने में, इंडिया की कमी निकालने में ज़्यादा मज़ा आता है. आप फॉरेन अफेयर्स पढ़िए या फिर फॉरेन पॉलिसी पढ़िए. मैं मैगजीन्स की बात कर रहा हूँ. अभी डिप्लोमेट ने कितनी यूजलेस हाँ, स्टोरी की थी, मतलब डिप्लोमेट ने कितनी ज़्यादा अनकमिंग ऑफ अ पेपर लाइक ऑफ अ मैगजीन लाइक डिप्लोमेट. एग्जैक्टली. तो उनको ये लगता है कि इस तरीके से हम इंडिया को टारगेट कर सकते हैं या ये दिखा सकते हैं कि इंडिया वाकई में हारा है. somehow the world gets convinced. Well, the world gets convinced, but then the conviction of the world is one thing, but for people who have the eyes and the ears, they have everything. I think the satellite imageries doesn't lie. This is exactly what I was about to say. जो लोग हमारी एजेंसीज के साथ डायरेक्टली टच में हैं, जो देश है, जो एम्बेसी, जो हमें सुनते हैं, उनको पता है कि क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है. पाकिस्तान आर्मी दे आर ट्राइंग टू सेंड अ डेलीगेशन टू मल्टीपल कंट्रीज़, जहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो हमारी एयर सुपीरियरिटी है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा है, और कैसे हमने इंडिया के मिसाइल्स को ब्लॉक किया, उनके वॉरफेयर को ब्लॉक किया, ब्ला ब्ला ब्ला. कुछ एक कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी एंड कुछ एक कंट्रीज ने ना कर दिया है. सो द प्रॉब्लम इज कि आपसे जो दूसरे मुल्क हैं वो ऑलरेडी आपसे जलते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से बढ़ रहे हो, वो पचा नहीं पा रहे हैं. बट उसमें फिर हमारी शॉर्टकमिंग है, और हमारी शॉर्टकमिंग ये है कि इवन पीपल हु आर प्रो इंडिया, one don't approach them in the right way, and anybody we want to get on our media or we want to do it, it's more of a propagandist जो बिल्कुल वो एक loud drum beating जो करेगा, Yes. उस टाइप का. we only promote that kind of thing, that gray nuance which is there, which a normal white man can still talk about India and can still be objective. I don't think we promote that kind of narrative. Yes. Still, we are, it's either or kind of a narrative we have. So I think that is a shortcoming which we won't have. And that is a shortcoming which we should be looking at closing the gap at. For example, we do not have voices जो इंडिया के बिहाफ पे विद डिटेल्स, निक्की एशियंस व्यू या डिप्लोमेट APAC या फिर फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है. वॉशिंगटन एग्जामिनर हो गया, या फिर हडसन इंस्टीट्यूट हो गया, या AEI हो गया, या फिर इवन फॉरेन पॉलिसी हो गया. फॉरेन पॉलिसी में एशिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर पब्लिश होती है तो माइकल कूगलमैन पब्लिश करते हैं. माइकल कूगलमैन का इंडिया के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो जग जाहिर है.
नहीं, वो तो माइकल कुगलमैन, look, I don't even consider him as a सो somebody एग्जैक्टली who's मुझे नहीं पता वो कहाँ से intellectual. एक्सपर्ट है, किस हिसाब से एक्सपर्ट है। बंदा झूठ बोलता है, वाइल्ड गेसेस देता है, जो कि हर बार गलत हुए हैं, हर हाँ। बार गलत हुए हैं। इलेक्शन के टाइम पे जितनी भी उन्होंने सो कॉल्ड भविष्यवाणियां की थी, हर बार गलत हुई हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो अब एस्केलेट नहीं होगा और पीछे हो जाएंगे, वो भी गलत हुआ। आई डू नॉट नो ऑन व्हाट बेसिस ही हैज़ बिकम साउथ एशियन एक्सपर्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस तरीके की वॉइसेस हैं, Yeah. हमारी जो वॉइसेस हैं, इन्हें लिखने, इवन वॉर ऑन द रॉक्स, वॉर ऑन द रॉक आपके सुशांत सिंह लिखते हैं, जो ऑलरेडी इंडिया से उनको इंडिया की मिलिट्री से नफरत है, हर एक जगह उनको कमी दिखती है। इस तरीके के लोगों को उन लोगों ने चैनलाइज किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। सुशांत सिंह तो पता ही है उसका, तो we know इनफैक्ट that. इस तरीके के आर्टिकल्स का काउंटर आर्टिकल भी कोई नहीं पब्लिश करता है। See, that is what I'm saying. You know, the only guy I have seen who's very proactive in these kind of field think tank mein hai, that is Michael Rubin. He's very, you know, anti-Pakistan, and he is very clear on his thinking. But the ratio is like 10:1. एग्जैक्टली। And also with these think tanks, they always promote something called mediocrity. They will always take mediocre people who they can Yes. shape up for their narratives, right? So it's very difficult for people to get in there if you're not mediocre and you cannot be influenced to a particular line. But I think, you know, it is time that India seriously takes information warfare I mean, see, and there are starts building satellite images and capacities. नहीं, they वो are ठीक है. publicly available. Everyone is having access to them, can see and see this is the amount of Yeah, damage that has been inflicted But on that is what I'm Pakistan. saying. आपने कभी डॉन के सीनियर एडिटर से बात करने की कोशिश की, DGISPR से बात करने की कोशिश की, औरंगजेब मिस्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बात करने की कोशिश की, मिस्टर फील्ड मार्शल से बात करने की कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की? अगर कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्लेम कर रहे हो कि आपकी जीत हुई है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? क्या आप इनको एक्सप्लेन करना चाहोगे? आप देखिए दैट गाय, पाकिस्तानी ओसेंट गाय, ही वाज सेइंग कि सैटेलाइट की इमेजेस गलत हैं, मैं वही कह रहा हूँ. See, that जस्ट बिकॉज इट डज नॉट सूट देयर नैरेटिव। That is what I'm saying. So what we need to do is we need to understand and ace the scale. And that is where I say that, you know, since we have the evidence and overwhelmingly evidence, we should not have stopped. We should have called all the foreign media, give a briefing, presented the satellite images, presented the videographic images, and pushed them to see the reality. At least you would have told your side of the story out. You should also have put out those civilians who were injured in Poonch, who were killed in Poonch, right? You had a 2-year-old who died. You should have put out their photographs as well and said this is the losses which has happened on the civilian side as well. So I think there is something, you know, I understand the world is jealous, but I think we are also lacking in our own communication. Yes. And I think it is time that we need to get proactive into this communication. Yes. We need to understand that how important communicating to the world is. We cannot say that, oh, we don't care about it, and then when the world makes a noise, the wrong noise, we say, oh, they're, you know, ये ऐसे ही हैं, ये हमारे, they're biased towards India, because we need to put the story out. मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहोगे तो आपके नाम की स्टोरी किसी भी पब्लिकेशन हाउस में छप जाएगी, प्रोवाइडेड यू हैव द विल एंड यू एक्नॉलेज कि इस चीज़ को करने की ज़रूरतें हैं। अगर आपको लगेगा कि ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दे आर एंटी इंडिया नैरेटिव, तो आप उसको वहीं पे छोड़ दोगे। उसके बाद क्या होता है, वो आज भी पाकिस्तानी कौम को लगता है कि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, ये जो इमेजेस हैं ये झूठी इमेजेस हैं। अब आप इस कॉम को क्या कन्विंस कर सकते हो या इस कॉम को डिटेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर फिर इंटरनेशनल मीडिया वो भी पाकिस्तान का ही ढोल बजाते हैं। That is the point. That is important. वही मैं कह रहा हूं Pakistanis are कि not important. एक स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। स्टेज 2 इतना ज्यादा सुपीरियर है कि स्टेज 1 वाले ये कहते हैं कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप जो चीज कह रहे हो ये चीज आप 2000 जब बालाकोट हुआ था तब भी आप ये चीज कह रहे थे, 2019 में भी बोल रहे थे, 2016 में में भी बोल रहे थे, किसी ने आपकी बात नहीं मानी। और जो हम बोल रहे थे हमारी बात तब भी मानी गई थी और हमारी बात अब भी मानी जा रही है। सवाल आपसे हो रहे हैं, आप उनको देखिए, उनके इतने ज़्यादा लॉस हुए, इस चीज़ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी ज़्यादा गई गुजरी कौम है कि उसको ये लगता है कि हमने इनका एक रफ़ेल गिरा दिया, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर गिराया भी है तो
इन दैट उसके केस लिए भी प्रूफ नहीं, they have no उसके proof on that. उसके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं है राफेल की भाई गिर गई किसी को पता नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है Exactly. कम से कम रडार पे, वो भी नहीं है हाँ। उनके पास. So that is what I'm saying. You know, it is not about Pakistanis. I'm not here what Pakistanis know. इट इज एन एंटायर इकोसिस्टम दैट समहाउ पाकिस्तान इससे एडवांटेज लेता है और ये पाकिस्तान से एडवांटेज लेते So हैं। that ecosystem needs to be fought, and that is Definitely. what I think. So you want to summarize it quickly? नंबर 1, अगर जो हमारे सीडीएस साहब ने कहा है आप इसको गौर से सुनिए। जो हमारा मटेरियल है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्होंने कितने कॉम्प्रहेंसिवली उस मटेरियल का यूज़ किया है टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। इस केस में पहले दिन भी जो हमारे मटेरियल्स थे उनका प्रॉपर यूज़ किया गया टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे दिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स फिर से रीडिज़ाइन किए गए, हमने उन्हें अचीव किया। और तीसरे दिन मैसिवली ओवरवेलमिंगली हमने अपने जो टारगेट्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें अचीव किया। उसके बाद भी आगे की भी जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो लेड आउट थे, लेकिन समहाउ थर्ड कंट्री इंटरवीन, बिकॉज जैसा मैं कहता हूँ, जो ऐसा मेरा मानना है, लोग मुझसे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई डर्टी सीक्रेट था जो उनका बाहर आने वाला था। तो आप लोगों से बस इतनी छोटी सी दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ों में मत जाइए कि कुछ हमारा गया या नहीं गया। आप ये देखिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे हमने उन्हें बहुत ही स्मूथली अचीव किया, और मीनवाइल जो हमारे लेसन्स थे वो भी हमने लर्न किए। Now, obviously, you need to learn your lessons from it. So, with that, we're going to end this podcast of today. I hope you liked it. Please like it, share it, subscribe it, and also you can contribute from by becoming members or using super chat, super stickers, or super thanks. Please become members because we are looking to bring in members only content exclusive for the members, and that will really help us to grow this channel. And with all your love, I'm hoping that we'll achieve a target of about 10,000 followers. Let's set ourselves a target of 10,000 followers in next coming 2 to 3 months. We are already at 6,300 at the moment when I'm doing this podcast with you. So till next time, thank you. Jai Hind. जय भारत।